lovely students, now come on to the next chapter. This is chapter number 10. The chapter name is Use of Articles A and N. Okay, use of articles A and N. In this class we are going to study about बच्चों articles के बारे में पढ़ेंगे जो कि A और N. Understand? So students, A and N are the articles. जो A है और A N है वो क्या है बच्चों? आर्टिकल्स हैं. अंडरस्टैंड? A N इज यूज्ड बिफोर वॉवल्स. बच्चों ये जो A N है वो हम A N N यूज करते हैं बिफोर द वॉवल्स. वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे होते हैं वॉवल R A E I O U. वॉवल्स होते हैं A E I O U. ओके, so A N N हम यूज करते हैं यूज्ड बिफोर वॉवल्स. We just used an before vowels. Okay, and a is used before consonants. बच्चों हमारे 5 तो vowels होते हैं A, E, I, O, U. Okay, ये हमारे vowels होते हैं. Now rest जितने भी consonants होते हैं कितने होते हैं? हमारे total 26 letters होते हैं जिसमें से 5 हमारे क्या हो गए बच्चों? वॉवल्स हो गए. एंड रेस्ट इज 21. तो 21 हमारे क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं हमारे? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स. एन हम लगाते हैं बिफोर वॉवल्स एंड ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स. अंडरस्टैंड? दे आर ऑल द अल्फाबेट्स. दे आर ऑल द अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वॉवल्स. ओके, दे आर ऑल द अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वॉवल्स. ओके, वॉवल्स के एक्सेप्ट. ओके, नाउ सी दिस इज अ हिल. यहाँ पर वोवल नहीं था तो हमने ए का यूज किया. देयर इज वोवल इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड. दिस इज एलिफेंट, so there is E. Okay, there is E, so is vowel, so we write before A and N before the elephant. This is a hut, a tree, a girl, a boy and ox. अब A and N क्यों लिखा? Because ox is having a vowel, that is O. An ant, a flower, an ant and a flower. Next students, test yourself. Write A or N. This is a dog, a hen and an ice cream because there is vowel and there is vowel is I. Okay. Next is an egg, a fish, a hat. Question number 2. Pick the words that starts with the correct article given below. See, जो करेक्ट आर्टिकल है बच्चों हम उस पर टिक करना है. एन ऑरेंज, यस. अ कप, यस. अ आई नहीं होना चाहिए बच्चों, एन आई होना चाहिए क्योंकि इज वॉवल. हॉकी, नो. अ डक, यस. अगेन एन ऑक्स, यस. अ बैग, यस. अ याक, यस. एन अम्ब्रेला, यस. अ आउल, नो. एन आउल होना चाहिए. Next students, come on to the next chapter, that is chapter number 11. Chapter number 11, chapter name is use of this that. Use of this that. बच्चों this हम use करते हैं is used to point near object or near thing. Is used to point near object or near thing. जो चीज हमारे पास होती है ना, उसके लिए हम this use करते हैं. And as well as जो चीज हमारे से दूर होती है that is used to point distance object or things. जो हमसे दूर होते हैं उसके लिए हम that यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? तो that is used to point distance object or thing. ओके, डिस्टेंस में होती है चीजें जो दूर होती हैं. ओके, ये पेन मेरे पास है तो दिस इज अ पेन. ओके, बिकॉज दिस इज नियर टू मी. ओके, नाउ कोई चीज दूर होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं that. Like this is a cat because it is near to us. And that is a tiger. That is a tiger because it is far
This is a lion. It is near. That is a fox. Okay. This is far. Next, again, that is a dog. This is a bear. That is a deer. This is an eagle. Understand? Yes. That is a cow. That is a cow. Again, tell me. This हम यूज करते हैं नियर ऑब्जेक्ट के लिए एंड दैट यूज करते हैं फार ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट के लिए. ओके. Now come on to the exercise. Read and write. Fill in the blanks with this or that. बच्चों, tell me, this is far or near? This is near. So this is a tiger. Okay. अब बच्चों ये cow है, ये दूर है. Means we will use that here. THAT, that. Understand? इसी तरीके से आपको इन सभी को लिखना है. जो पास है उसके लिए this और जो दूर है उसके लिए that. Yes. Now come on to the next chapter, that is chapter number 12. Chapter number 12 is one and many. बच्चों one means एक और many means बहुत सारे. One means एक और many means बहुत सारे. This is one finger and this is many fingers. Okay. See, this is tiger. बच्चों ये tiger है बस, क्योंकि एक ही tiger है, क्योंकि ये एक ही tiger है. अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये टाइगर्स हैं. हमने इसमें क्या ऐड किया? वी ऐड एस हेयर बिकॉज दे आर मेनी टाइगर्स. ओके. जब एक चीज होती है उसके लिए हम टाइगर नॉर्मल उसका नाम लिखते हैं एंड देन वी विल यूज एस अगर वो बहुत सारी होती है, मेनी होती है. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज बुक. बच्चों ये है वन बुक. तो वन बुक के लिए हम बुक यूज करेंगे एंड देन जब वो बहुत सारी हो जाएंगी तो इट विल बिकम बॉक्स. वी यूज एस, वी ऐड एस. नेक्स्ट इज dog. This is one dog and this is dogs because there are too many dogs. Next is pen and there are many pen, so we will add s here. It will become pens. Yes, this is one ball and now there are three balls, means many balls, so it will become balls. We will add s here. Next is bird. Next is bird and now one more bird यानी कि many birds, so it will become birds. तो जब एक चीज होती है तो वन यूज करते हैं हम बच्चों. ओके. जब एक चीज होती है तो हम उसके लिए यूज करते हैं वन और जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं many. ओके. Yes. Now come on to the next chapter, chapter number 13. Chapter number 13 and the chapter name is use of is. Use of is. The word is used for one thing. बच्चों is use होता है one thing के लिए, एक चीज के लिए. ठीक है. जैसे मेरे पास ये पेन है, so this is pen because ये एक पेन है. ओके. अगर ये दो होते तो these are pens because ये दो थे. ओके. See, this is bird. ये एक बर्ड है, so हमने यूज किया this is a bird simply. तो इस यूज करते हैं हम बच्चों एक ऑब्जेक्ट के लिए. This is a cup. This is a cup because हमने यूज किया यहाँ पर is because it is one cup. Okay. Next is third one is this is a car. हमने यूज किया is because it is one car. Again, as well as this is the mug is red. The mug is red. ये जो मग है वो रेड है और जो मग है वो एक ही मग है. ओके. इसलिए हमने is यूज किया. Now tell me, this is a cow. cow कितनी है? एक है, इसलिए हमने इसको is का यूज किया. So basically is means one चीज, means one. ओके. हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जब हम is लगाते हैं तो.
Now come on to the next chapter, chapter number 14, use of are. बच्चों अभी हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम इज का यूज करते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूज ऑफ आर. जब हम बहुत सारी चीजों मैनी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वील यूज आर. हम क्या यूज करते हैं? हम आर यूज करते हैं. ओके, सी द वर्ड आर इज यूज्ड फॉर मोर देन वन थिंग. मोर देन वन थिंग मीन्स एक से ज्यादा चीजों के लिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज करते हैं. सी यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है. ओके, सी देयर आर कप्स. बहुत सारे कप्स हैं, तो दीज आर कप्स. दीज आर कप्स. अब बच्चों यहाँ पर ये काइट्स हैं, बहुत सारी काइट्स हैं, तो दोज आर काइट्स. दोज आर काइट्स. दोज हम यूज करते हैं दूर की चीजों के लिए जो बहुत सारी होती हैं. ओके, नाउ दीज आर रेड बॉल्स. दीज आर रेड बॉल्स. ये बहुत सारी बॉल्स हैं, और दीज हम यूज करते हैं कब? जब वो चीजें हमारे पास होती हैं, और बहुत सारी होती हैं इसलिए, और ये बहुत सारी चीजें और ये हमारे पास है, तो वी विल राइट दीज आर रेड बॉल्स. नाउ लास्ट वन, दिस इज नंबर 5. द बकेट्स आर एम्प्टी. बच्चों ये जो बकेट्स हैं वो खाली हैं, लेकिन कितनी बकेट्स हैं? 2 बकेट्स हैं, इसलिए हमने आर का यूज किया. मोर देन वन के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं, एंड वन के लिए हम इज का यूज करते हैं. अंडरस्टैंड? Yes. Now come on to the exercise. Read and write. Question number 1. Fill in the blanks with is or are. बच्चों अब आपको यहाँ पर fill down करना है फिलअप्स को. This is with the help of is or are. One has been done for you. See, यहाँ पर बहुत सारे reds हैं, तो the reds are here. The cups बहुत सारे हैं, तो the cups are blue. The mug. बच्चों मग कितने हैं? एक हैं, तो द मग इज रेड. वी विल राइट इज हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर द बॉय डैश प्लेइंग. बच्चों बॉय कितने हैं? एक है, एक ही बच्चा खेल रहा है, तो द बॉय इज प्लेइंग. अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स टू योरसेल्फ. Now come on to the next chapter, chapter number 15, and chapter name is use of and. बच्चों हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एंड. एंड मीन्स होता है बच्चों और. अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए. अ बॉय एंड अ गर्ल. अ बॉय एंड अ गर्ल. एक लड़का और एक लड़की. ओके, तो एंड का यूज हम करते हैं जब हम किसी दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं. अ बॉय एंड अ गर्ल. सी दिस इज अ बॉय एंड दिस इज अ गर्ल. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर एक हैन है और एक पैरेट है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे अ हैन एंड अ पैरेट. तो हमने किसका यूज किया बच्चों? एंड का. तो एंड मीन्स और. एक हैन और एक पैरेट. अ हैन एंड अ पैरेट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज टाइगर and lion. So we'll say a tiger and a lion. Next one is pen. A pen and a book. A pen and a book. See, bread and butter. They always comes together. Bread and butter. Now, dog and cat. A dog and a cat. Next is a bag, a mug. A bag and a mug. Yes, students. Now, prepare it very well. I hope you all have understood very well, and we will meet you in next class. Thank you.